Welcome back. Yes, Sapna, you were right. Google Meet could have been there, and mm, we could purchase the premium version of Zoom as well, so that the time limit can be removed. But we opted this perhaps for a few reasons. Now we may revisit with your inputs as well. Number one is that this gives a breather in between. And then the recordings are very small recordings, half an hour recordings. As you see the yesterday's, uh, is there anyone who visited the playlist, recording playlist that we shared yesterday? There's the recordings actually we have shared in the chat yesterday. Just share the glimpse of it. Okay, yes. Yeah. This was the older one. Hmm. This is actually the latest one. You see, yesterday's recordings are listed here. So these are all 34, 35 minutes duration. So this is one of the reasons, Sapnaji. We went ahead with these 40 minutes slots, which gives us a breather in between, needed breaks, and the smaller recordings, smaller spell, so that attention can be sustained. So now any inputs from your side, we welcome actually. If you have a rationale still, then you can go for the longer version, maybe next workshop onwards. Okay. So Sapnaji said that it's okay, got it. Right. So let's go back to our discussion. Kalyan sir, Yes, Kalyan Pooja. sir, I have one question. Like in the previous conversation, you told कि we consider conflict as a problem, and then we find out the solution for it. Instead, we should inquire about it. Let us take the example of a disease. If a person considered disease which he is suffering from the last 2-3 years, for him or her, that disease is the problem, and he has to find out the solution ki why this disease is there in his body. And with the exploration and observation, he find out that the fruit are the solution for my disease. So his main motive of taking fruit is to find the solution of his disease. So here sir, ki how he inquire it further, कि disease उसको पता चल गया कि there is a disease, and the root cause of the disease is the toxinemia, accumulation of toxin, and to get rid of the toxins we have to take the fruits, and fruits provide us that vital energy which is required for the healing process.
So he inquire all these things and find out the solution. So sir, this way we can find out the solution by inquiring and observing and then find out the solution. नहीं, हम लोग कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जो भी प्रॉब्लम का नाम दे रहे हैं हम, उस नामकरण का जो मंशा है, द साइकोलॉजिकल स्पेस फ्रॉम विच वी इंटरप्रेट अ सिचुएशन एज अ प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजिकल स्पेस. We are not trying to explore something specific here. We are trying to understand the operation of the psychological space in this process of interpreting something. जो आप अभी नरेट किए, ये सारे में क्वेश्चन उठ सकता है इंटरप्रिटेशन के नाम पे. ये आपने डिजीज पहले फाइनल कर दी, सॉरी, आपने पहले आप जो डिजीज का नाम दे रहे थे, जो प्रॉब्लम का नाम दे रहे थे, वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेंसरी डिस्कम्फर्ट उसका नाम दे रहे थे प्रॉब्लम. अदरवाइज वो आपके अंदर जमा हुआ टॉक्सिन को निकाल फेंक रही है, तो वो तो सॉल्यूशन अपने आप कर रही है. आप इसको समझ रहे हैं क्या? एट द फर्स्ट प्लेस जो डिजीज का नामकरण हम किए हैं, डिजीज, और उसका एक कंसिडरेशन बनाए, एक दिमागी चित्रीकरण किए हैं, एक इमेज फॉर्मेशन किए हैं एज अ प्रॉब्लम. इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसको प्रॉब्लम का इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, जो खुद ब खुद सॉल्यूशन ही हो रहा है. समझ पा रहे हैं क्या ये? यस सर. अगर हम ये समझ जाए कि डिजीज तो अपने आप ठीक होने का एक प्रोसेस है, ये अगर समझ जाए तो फिर ट्रीटमेंट का खोज ही ना करें. ट्रीटमेंट का इजाद तो उसके बाद होगा, जब हम ये बहक जाएंगे या कंक्लूड कर देंगे जी ये तो भाई प्रॉब्लम है, मैं इंटरवीन ना करूं तो इससे मेरा छुटकारा पाना मुश्किल है, तब जाके ना ट्रीटमेंट की बात आएगी. तो हम एक कल्पना के वजह से दूसरे कल्पना को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर फंसे हुए हैं. हम अगर ये जो पहला कल्पना है इसको अगर गौर से देख ले तो फिर दिख जाए जो चीज का मैं मांग कर रहा हूं वो ऑलरेडी हो रहा है, अपने आप हो रहा है. अगर नहीं होता तो फिर ये सृष्टि टिकती ही नहीं. ये सृष्टि टिकने की कारण है, इसमें हीलिंग कैपेबिलिटी है, नेचुरल हीलिंग कैपेबिलिटी है, तभी ये सृष्टि टिका हुआ है. अगर हीलिंग कैपेबिलिटी नहीं होता. सर लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डायबिटीज. इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और जो भी उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है एट द बॉडीली लेवल, दैट इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ द सॉल्यूशन. यस यस. इनफैक्ट अगर हम डायबिटीज को गहराई से ना समझे, वो ऊपर ऊपर सिर्फ ब्लड का शुगर लेवल टेस्ट करके उसका एक रेंज से कंपेयर करके सिर्फ एक नामकरण हो गया डायबिटीज, तो ये तो एक शैलो एक्सप्लोरेशन है ऑफ हेल्थ. अगर हमें ये समझ में आए जे बॉडी हैज अंडरगॉन अ डीप इनर्वेशन एंड from there the toxemia has been generated within the body, and then perhaps one part of the body may be named as pancreas got affected as the accumulated toxin got accumulated there and it is underperforming. ऐसा पॉसिबिलिटी है, पर एंड ऑफ द डे जो समझना है ये तो टॉक्सीमिया है. इसका नामकरण कभी हम डायबिटीज कर देते हैं, कभी हाइपरटेंशन कर देते हैं, कभी अर्थराइटिस कर देते हैं, कभी स्पॉन्डिलाइटिस कर देते हैं, बट आखिरकार ये ब्लड में घूमता हुआ टॉक्सिन है, वो कहीं कहीं जाके फंस रहा है और वहां पर एक सिम्टम्स दिखा रहा है. अदरवाइज डायबिटीज के साथ अर्थराइटिस का कोई डिफरेंस ही नहीं है. एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए, समझा जाए, तो फिर कोई डिफरेंस है ही नहीं, वो सिम्टोमेटिक डिफरेंस है. और सिम्टोमेटिक डिफरेंस तो
होगा ही, मतलब वो हम लोग तो यूनिकली ऑपरेट ही कर रहे हैं, हर कोई अलग है हम लोग। थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है क्या इसमें yes sir. क्लैरिटी? तो Yes, sir. Yes, फिर sir. Got it. तो फिर अगर हम ये समझ पाए जे टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होना ही सारे जो सिम्टम्स जो हमारा हो रहा है, हो सकता है वो सालों से चला आया है, अभी बहुत क्रॉनिक हो गया है, बहुत हार्डन हो गया है, फिर भी उसका जो फाउंडेशन पड़ा हुआ है वो वहीं पर पड़ा हुआ है जहां पर हम एक्यूट का सप्रेशन करना स्टार्ट किए हैं। एक्यूट डिजीज एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्यूट डिजीज तो एक्टिवली बॉडी इज ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ द टॉक्सिन। वहां से स्टोरी का स्टार्ट वहां से हुआ है, किसी भी तरह हुआ है। ब्लेम गेम से कोई काम नहीं हुआ जब मेरे पेरेंट्स ने करके रखा है मेरा आज हालत उस वजह से, इसका कोई मतलब नहीं है। जब जागो तभी सवेरा है। जब आपको दिख जाए चीजें तो फिर वो रिवर्स तो ऑलरेडी हो रहा है, बस अभी आपको इसको देखना है। अपने आप तो रिवर्स हो ही रहा है। जो इंटरवीन हम कर रहे थे वो बंद हो जाए शायद, अगर दिख जाए। अगर इंटरवीन को इंटरवेंशन के जैसा ना देखे तो फिर वो जारी रहेगा, वो चलता रहेगा। सर एक बात हाँ पूछनी है। श्रेया प्लीज। लेकिन ये इंटरवीन तो तभी करेंगे ना जब वो प्रॉब्लम दिखेगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम आया है बॉडी में, यानी कि कुछ रॉन्ग कर रहे थे, तो फिर अपन लगाएंगे कि भाई क्या इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। हाँ नहीं, वही इसको कुछ और एंगल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो करेक्शन का हमें कुछ इनिशिएटिव लेने का जरूरत है या समझ ही काफी है जो ये अननेचुरल एक्टिविटी हो रहा है? समझ काफी है। समझ काफी है। अगर समझ जाए तो मैं क्यों करूंगा, वो करने की वजह तो ना समझी है। अगर समझ आ जाए तो फिर और तो मुझे स्ट्रैटेजी बनाने का जरूरत ही नहीं है। अब जो रुकावट हम डाल रहे थे, जो हम इंटरवेंशन के थ्रू जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो अगर बंद हो जाए तो प्रॉब्लम ही गायब हो ना हो जाए। हाँ नीता जी अब कुछ बोलो। नहीं, मैं बोल रही थी कि मगर वो इंटरवेंशन ये भी हो सकता है कि जो हम कर रहे हैं वो ना करें। दैट कैन आल्सो बी एन इंटरवेंशन ना, मतलब व्हाटएवर इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बोल रहे हो। ये ना करने की मनसा भी एक एक्स्ट्रा इंटरवेंशन होगा, एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव होगा। इसको समझना जरूरी है। जब हम नकली कुछ कर रहे हैं तो वो नकली चीज को रोकने का क्या जरूरत है? सिर्फ इसको अगर दिख जाए कि ये नकली है तो वो टिके ही ना। इसका डिफरेंस समझ रहे हैं क्या श्रेया? आर यू एबल टू कंप्रीहेंड दिस टू, द डिफरेंस बिटवीन दीज थोड़ा टू? वापस एक्सप्लेन कीजिए ना, आई एम नॉट एबल टू गेट इट। हाँ, एक है आप एक नकली चीज कुछ कर रहे हैं, आप गलती कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए उसी उसी टर्म को यूज कर रहे हैं। आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड दिस रॉन्ग और राइट का जो टर्म है, बट एक कुछ अननेचुरल एक्ट कुछ कर रहे हैं आप। वो अननेचुरल एक्ट अगर आपको दिख जाए, सच में दिख जाए, तो आप करना जारी रखोगे क्या? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अननेचुरल एक्ट मींस कुछ चीज जो है वो आप इंटेंशनली कुछ इंटरवीन कर रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए फीवर का ही एस्पेक्ट है। एग्जांपल प्लीज। हाँ एग्जांपल दे रहे हैं। फीवर का एस्पेक्ट है। फीवर हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखा जो हाँ फीवर में तो शरीर से कुछ ना कुछ निकल रहा है, शरीर को हल्का कर रहा है, तो ये तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। तो जब ये सचमुच का हमें समझ आ जाएगी ये फीवर इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर द बॉडी टू डिटॉक्सिफाई इटसेल्फ, ये जब सचमुच का समझ में आ जाएगा तो फिर क्या मैं पैरासिटामोल जो ले रहा था अभी तक वो फिर मैं लूंगा या नहीं लूंगा? ये क्वेश्चन बन जाता है। सर ये तो बहुत अगर मैं लूंगा तो किस वजह से लूंगा, और अगर नहीं लूंगा तो किस वजह से नहीं लूंगा, इसका समझ। हाँ क्या बोल रहे थे नीता जी? मैं ये कह रही थी कि ये शायद तो ये इजी डिसीजन है once you get that understanding, but what I meant was even
things like eating the wrong kind of foods or eating or whatever, all the other inputs that we are giving it at a sensory level कि ये हमें इस painful situation में लाके खड़ा कर दिया and we realized, so those inputs can be stopped. That kind of intervention would be required, right? That would be called an intervention. नहीं, यहाँ पर एक्चुअली ना नेचुरल मूवमेंट का समझ बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी ईट? हम लोग हेल्दी होने के लिए खाते नहीं है, ऐसा कोई इंटेंशन के साथ हम खाते ही नहीं है, वो इंटेंशन ही अननेचुरल है। जो हेल्दी फूड खाते हैं, चलो हमें भूख लगता है उस वजह से खाते हैं, ये पहला रीजन है। हम क्या हर बार खाने के समय भूख न लगने की वेट करते हैं या नहीं करते हैं, इसको समझ सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं बिना भूख के अगर हम खा रहे हैं तो फिर अननेचुरल एक्ट कर रहे हैं। ये जब हम समझ जाएंगे तब हम खाना ही बंद कर देंगे बिना भूख का। ये है एक एग्जाम्पल अतुल। अगर हम खाने का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं तो फिर खाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ भूख है। वो हेल्थ वगैरह ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है, जो फलाना चीज हेल्दी है उस वजह से ये खाओ, ये सब ज्ञान है। वो अंडर इन्फ्लुएंस, वो P3 P2 लूप है बेसिकली। आपको बिना भूख के भी आप खा लोगे और वो जितना भी हेल्दी रहे सो कॉल्ड, आपका टॉक्सिन बनेगा। वो बिना भूख का एक दाना भी पेट में जाता है, वो ओवरबर्डन होता है बॉडी के लिए। But one thing I'm telling you, like I'm giving example for my daughter. Yes, Okay, yes, she's yes. 13 years age. Yes. So never she is feeling hungry. I mean, at least I cannot say never, but very few moments she is telling that I'm hungry. Okay, even I'm telling she has taken the dinner. Morning she's not feeling hungry. Lunch she's not feeling hungry. Then maybe after afternoon she is feeling some hungry. So is it natural? It's a very unfortunate state of being actually, because it's a highly conditioned state of being, which is a very conventional thing. Like we are eating timely. We are not eating according to the hunger. And we ended up, this is a typical example of desensitization. You were asking about one example of insensitivity, right? So if we are not able to sense hunger, that's the high insensitive state. That's a basic driver of the life. If we are not, so let your daughter be without food for 2 days. Then she will actually start identifying what is hunger. मर नहीं जाएगी वो 2 दिन नहीं खाएगी तो। उसको पता होना चाहिए जो हंगर खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आइडेंटिफाई कर पाए जो हंगर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ का एक सीख है, स्कूल में नहीं सिखाया जाता ये। तो हनीता, आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ क्या? आई डोंट नो। हाँ कल्याण जी, बस मैं वही इंटरवेंशन के ऊपर इंटरवेंशन का बात कर रहे थे। तो ये जो इंटरवेंशन है, ये इंटरवेंशन का एक बैकग्राउंड होता है। हम जब भी कुछ इंटरवेन करते हैं तो हम जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट का स्केच बना लेते हैं दिमाग के अंदर। तो जब ये इंटरवीन हम करते हैं तो जो स्केच बनाए हैं उसी स्केच को ढूंढते हैं एक्चुअल ट्रुथ में। इसका स्ट्रक्चर समझिए, इसका फ्रेमवर्क समझिए। इंटरवेंशन का जो फ्रेमवर्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटरवेंशन हम कुछ भी करेंगे, उसका एक कंक्लूजन रहेगा दिमाग के अंदर, जो हम कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, उस अचीवमेंट का एक पिक्चर बनाएंगे पहले ही, है ना? ऐसा ही होता है ना इंटरवेंशन। कभी भी आप इंटरवीन करोगे तो एक आउटकम, एंड रिजल्ट का पिक्चर ऑलरेडी रहेगा दिमाग के अंदर। यानी कि जो एक्चुअल घट रहा है वो हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम देखने की मनसा में है ही नहीं। मानसिक जो स्थिति है वो स्थिति कैप्चर्ड है उस पिक्चर के द्वारा जो दिमाग के अंदर हम तैयार किए हैं, उसको अचीव करना है हमें। यानी कि जैसे ये फीवर का एग्जांपल ले, फीवर बहुत इजी एग्जांपल है, एग्री विद यू, बट फीवर के एग्जांपल से समझ शायद सकते हैं, जब हमारा टारगेट रह जाएगा रिडक्शन ऑफ द टेम्परेचर।
उसमें जो स्टॉपेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन हो गया वो हम देखेंगे ही नहीं। हम खुश हो जाएंगे जब फीवर उतर गया, हम तो स्वस्थ हो गए। हमारा जो अंदर टॉक्सिन फंसा रह गया ये हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा फोकस पड़ा हुआ है वो रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर में, क्योंकि वही गोल है। हमें ऐसा कहीं लगने लगा है जब मेरा बॉडी मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है। ये सरासर एक कल्पना है। आपका बॉडी अगर आपका साथ छोड़ दे तो आप टिकोगे? तो आपका बॉडी अंदरूनी तरीके से जो भी कुछ कर रही है, आपको अगर अंधा बना के जा रही है तो भी वो जरूरत है तभी बना रही है। आपका मौत आ रहा तो भी जरूरत है तभी आ रही है। इसको समझ सकते हैं क्या? ये फैक्ट है, ये कोई अजम्पशन नहीं है। बॉडी का साथ अगर ना रहे तो हम कैसे टिके हुए हैं? और हम सोचते हैं कि ये बॉडी हमारे अगेंस्ट में चला गया, बॉडी को ट्रीटमेंट का जरूरत है। लाइक ऑटोइम्यून वाला जो कॉन्सेप्ट है हाँ, वो है ही नहीं। ये इम्यूनिटी इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट सुपरस्टिशन। इम्यूनिटी करके कुछ होता ही नहीं है। बॉडी में डिजीज मैकेनिज्म है, इम्यून मैकेनिज्म है ही नहीं। इम्यून मैकेनिज्म तो बाहर से हम देते हैं। डिजीज के साथ फाइट करना है। डिजीज के साथ फाइट क्यों करना है भाई? डिजीज तो मेरा रिलीफ के लिए हो रहा है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ हेल्थ, ये अंडरस्टैंडिंग इज कन्वेंशनली मिसिंग, and we are interpreting the situations as a problem, situation is a fearful and all those things. अभी और स्टोरी स्टार्ट होने वाला है ये कोरोना को लेके। अभी फिर ड्रामा स्टार्ट होगा, फिर से वैक्सीनेशन का स्टॉक बन गया है। तो ये चलेगा। एनीवे, कोई क्वेश्चन अनटच रह गया? रिफ्लेक्शन? नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन। So what is the inquiry in its real sense? ये is it something special skill जो वर्कशॉप अटेंड करके सीखना पड़ेगा? कुछ है नहीं। ये एक्चुअली इट्स अ नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। हम एजेंडा के लिए स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, डिजाइंड ही नहीं है। हम एजेंडा फॉर्म करने के लिए डिजाइंड ही नहीं है। आप एक बच्चे को, आप वही सिनेरियो ले लो, शाउटिंग के साथ बात करना, जिसको कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया है, जिसको कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, जो शाउटिंग मतलब इंसल्ट है। वो शाउट, अगर आप उसके साथ शाउटिंग करके जोर से जो ऊंचे आवाज में बात करोगे, वो सिर्फ कान को बंद करेगा, फिर आपसे वो चिपकेगा। वो कभी भी इंटरप्रेट नहीं करेगा जो उसका इंसल्ट हो गया, और ये चलता ही रहेगा जब तक ना उसका इंटरप्रिटेशन, उसमें दिमाग में किसी भी तरह ये डल जाए जो यार इतना जोर से बात कर रहा है, तुझे इंसल्ट कर रहा है, पता है, और इंसल्ट का मतलब ये क्या है, क्योंकि इनिशियली उसको इंसल्ट का मतलब ही पता नहीं रहेगा। तो हम गोल लेके पैदा हुए ही नहीं है। गोल एकदम इंसानी इजात है, एजेंडा इंसानी इजात है, और वो सिर्फ नेचुरल मूवमेंट को ब्लॉक करता है और कुछ उसका अचीवमेंट नहीं है। इसको हम क्या देख सकते हैं? कुछ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं इस पॉइंट पे? एनीवन? एजेंडालेसनेस। Sir, how did you come across this thought process to begin with? आपको ये आइडिया कहाँ से, I mean ये सोर्स कहाँ से है इसका? How did you even come across this thing? नहीं, ये हाउ डिड यू, ये यहाँ का कल्याण का एग्जिस्टेंस क्या है, ये कल्याण को कैसे समझ आया, ये तो मैटर ही नहीं कर रहे। हम लोग तो सब मिलके समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। उसमें मुझे कुछ स्पेशल समझ आ गया, ये आपका एजम्पशन है। कुछ स्पेशल समझ नहीं आया, हम भी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं इस चीज को। एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन वी आर ट्राइंग टू वेट इट, और कुछ नहीं है ये। और ये जो आपका जो स्लाइड में जो दिख रहा है, जी सर, ये सर कल्याण का प्रपोजल लोन है ही नहीं है। ये पिछले
6-7 साल से जो चल रहा है ये जर्नी लोगों के साथ बैठ के इंक्वायर करने का, उसी का ये रिफ्लेक्शन है। तो ये फिर इसका कोई ओनरशिप है नहीं एज अ होल। Got it. Got it. हाँ जी सर। सो बेनल, आप कुछ कहोगे इस स्लाइड के ऊपर? I'm also reflecting that we are biologically and physically not even structured to make agendas, and that's quite a piercing insight in itself, to see that this goal making itself is our own illusionary creation. So I'm staying with that thought for now. So basically, when we make a goal, what we do, we just put our energy to achieve it conventionally. And after we achieve it, and in the process of achieving it, what we tell ourselves, that's my purpose of life. Now, after we achieve it, what we do? Then we tell that it was a lie. It was not the purpose of life. Now, this is a new goal I'm setting for yourself. This is the purpose of life. So in the bargain, what we do, we are always running behind something. Even after achieving it, we are considering that it is not an achievement. End of the day. This story, is it relatable? Any reflection, anyone? Nandini wants to say something. Yeah, it's totally relatable. It's very true that we are always looking for the next thing. You know, ab ye ho gaya, so you know, ab bahut time ho gaya, usse hum bore bhi ho jate hain. Now let's find something new. Ab iske bare mein humne kafi kuch seekh liya. Maybe this was not the ultimate goal. Maybe the goal is something else. It's so true that we just get bored. We always want to chase the new thing. I think this is the case even with relationships. People get bored with whoever their partner is, and then they move on to the next partner, especially let's say the ones who are not married. Tab to aisa hota hi hai. So it's very true. It's very relatable. I'm just reflecting it back. Yes, Even sir. with The next food, thing- you know, like even the best food we've eaten, and अब हम बोर हो गए इसको खा के, अब कुछ नया बनाओ, अब कुछ और करो, you know. So next logical progression is breatharian. For you, you're targeting that? No, मैं बोल रहा हूँ most of us इसके बाद हाँ, कल कोई breatharians के बात भी कर रहे थे. That's also a goal achievement. You know, it like a marathon running. You know, breatharian is a possibility that we have seen. There are multiple breatharians, and which has who have undergone the scanner also. They have been scanned whether they are faking or not. Then it is found that they are really on breathings, no food, no solid food intake is there. But how one can achieve it? Through practice, through strategies. So it's again a goal and its achievement. Yeah, Madhvi ji. हाँ सर, वो एजेंडा लेस के बारे में जो आप अभी बात कर रहे थे, it can be compared to something that we were talking about in the morning, where Pooja was saying कि गुस्सा बंदा हमेशा करता है, तो then next time you form this thing कि वो गुस्सा ही करेगा 11th time भी. तो एजेंडा लेस यही इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं कि your answer to that was कि start afresh, मतलब उसको देखो नहीं कि वो गुस्सा करेगा, that is draining the energy, और okay वो उसने गुस्सा किया है, अब हम freshly उसको सामना कर रहे हैं, the person, we are facing him afresh. So same thing applies to the agenda less also, okay, start afresh, which and when we have इसमें और एक चीज जो समझने वाली बात है, ये let's not take it as an instruction, जो freshly देखो.
एक्चुअली क्या है, फ्रेशली होने वाला है। हम देखेंगे या नहीं देखेंगे वो इंडिविजुअल के ऊपर है, बट जो चीज होने वाला है इस फैक्ट को समझते हैं पहले। जो 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 मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है वो तो अभी तक हुआ नहीं है, वो तो फ्रेश ही होने वाला है। तो हम अगर उसको फ्रेश देख रहे हैं तो कुछ नया कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमें एफर्ट लगाना है जो फ्रेश देखने के लिए, हमें कोई स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा ताकि हमें फ्रेश दिख जाए। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो निटी ग्रिटी है ना, यही पर डाउट रह जाएगा। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जो फ्रेशली देखो, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं जो चीजें फ्रेश हो ही नहीं है। तो हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नया कुछ नहीं कर रहे हैं। फ्रेशली देखने का कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। हाउ टू लुक एट फ्रेश, यार वो तो फ्रेश हो ही रहा है। हर एक मोमेंट जो जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो नया नया ही हो रहे हैं, मोमेंट बाय मोमेंट। हम जस्ट उसको एज इज देख रहे हैं। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? हाँ, I understood, but our starting point is only कि हमने कुछ धारणाएं मन में रखी है। When we are starting from this point, the only way to go forward is to say कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम मतलब ये जो मतलब एक्स्ट्रा लगेज जो हम लेके चल रहे हैं, देखने का जो एस्पेक्ट है ना उसमें हैम्पर्ड हो जाएगा। जैसे ही हम ऐसा करेंगे जो ये धारणा हम नहीं रखेंगे, चलो ये जब भी हम ठान लेते हैं जो आज से तो धारणा रखना बंद है, ये और एक धारणा लेके चल बैठे हुए हैं, फिर वो हमें दिख नहीं रहा। इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई जस्ट सी द धारणा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है हमें। अगर धारणा दिख जाए, धारणा दिख नहीं रहा है तभी टिका हुआ है, ये फैक्ट है। भाई साहब, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड ना करे ना, मतलब जो, तो फिर वो फ्रेश ना होगा। करे, ना किए कैसे रह सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका तो मतलब रिकॉर्ड होना ही है, उसको बस देखा, उस चीज को, उसमें कोई इम्प्रेशन नहीं बना अपने आप ही। जब हम, हाँ जब देखोगे तो बनेगा ही नहीं। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है। हाँ, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है। आप अगर देख रहे हो, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, देन देयर विल नॉट बी एनी आइडिएटेड सेंसेशन, देयर इज नो पॉसिबल। फ्रेश ही होएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो फ्रेश ही होगा अपने आप ही। जब सेंसेशन ही नहीं बन रहा, जब आपका जजमेंटल परसेप्शन आ ही नहीं रहा है आपके अंदर, तो फिर तो आप फ्री हो ना, अपने बाय डिफॉल्ट फ्री हो। फ्री होने के लिए कोई तवज्जो करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है। नंदिनी वांट्स टू कम इन। मैं ये सोच रही थी कि अगर कोई गोल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे लाइफ में? see the liberation मेरा that गोल time. है कि मुझे गार्डनिंग सीखनी है और फल उगाने हैं और उसमें मुझे मजा भी आता है। तो अब मैं प्लानिंग करूंगी कि अभी मैं क्या बोऊं, फिर क्या उगेगा। तो ये सब मतलब कैसे होगा अगर मुझे अगर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं खुद को, जे अगर वो ना करे तो फिर मेरा क्या हाल होगा। अगर फिर भी हमें दिखे खुश नहीं होंगी, हाँ ये खुश नहीं होंगी, तो मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ खुद के लिए। तो फिर चिपचिपाहट है। आपने पूछा इसलिए बोल रही हूँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। नहीं, आप बोलो या ना बोलो, अगर सचमुच का अंदर खुश नहीं होगे आप, ऐसा मान लो केस अगर है, मैं नहीं करूंगी उसको तो खुश नहीं होंगी। इट्स नॉट कि मैं खुश नहीं होंगी, बट आई थिंक आई विल बी हैप्पियर इफ आई डू इट। एक ही बात कर रहे हो आप, जस्ट यू आर चेंजिंग द लैंग्वेज। ठीक है, दोनों बात आप एक ही किए, खुश नहीं होंगी बोले, और आप बोल रहे हो जो आप हैप्पियर होंगी अगर करेंगे। नाउ ये जो कंपैरिजन, because now I'm happy and I'll be happier if I do this. Let's say. Now here the P2 needs to be understood. If you identify some P2, अच्छा लगना, ज्यादा खुश होना, दुखी हो जाना, ये सारा है सेंसेशन। ये अगर दिख रहा है तो फिर हम फंस रहे हैं।
हम फंस अपना रहे हैं। एनर्जी का एक फ्लक्स बना रहे हैं, भंवर में जा रहे हैं, वो तो कुछ अगर भी हम हो। कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो व्हाट इज द वे टू डू इट नेचुरली विदाउट ये भंवर में फंसने के ये बिना? चाहना ही भंवर है।